امام حسن اور امیر معاویہ دونوں مسلمان گروہ تھے رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور مسلمانوں میں اختلاف کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے لیے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو جب امام نے صلح کر لی، اب یہ سوال سمجھنے والا ہے، امیر معاویہ کی بیعت کر کے انہیں قبول کر لیا، تو پھر اہل تشیع حضرات انہیں قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہ شرطیں آپ لکھیں، جنگ تو یہی میں مولا جیت گئے، کاغذ قلم اس گھر سے آیا ہے جنہوں نے محمد کو نہیں دیا تھا۔ شرطیں ہمیشہ فاتح منواتے، سبحان اللہ، شرائط ہمیشہ غالب منواتے۔ اس نے مولا حسن سے کہا شرطیں لکھیں۔ بسم اللہ۔ میرے شہنشاہ نے ملوکیت بن چکی تھی نا، اب خلافت نہیں رہی تھی، اب بادشاہت بن چکی تھی، اب ذل سبحانی ہو چکے تھے، اب شہنشاہیت کا دور تھا، اب درباروں کی جگہ بہت اونچے اونچے میناروں والے محل بن چکے تھے۔ امام حسن مصطفیٰ نے پہلی شرط لکھی، آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پر یہ شرط نہیں تھی، یہ ملوکیت کا قتل تھا۔ میرا خیال ہے 1 سال بھی امام حسن لشکر لے کے جنگ لڑتے، اتنا واضح نتیجہ نہ نکلتا۔ یہ امام حسن نے شرط کے وار کے ساتھ چہروں سے نقاب اٹھا دیا، آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ آج تک مورخ اس شرط کو بنی امیہ کے دور میں بھی مٹا نہ سکتا۔ جتنے پڑھے لکھے اہل سنت علماء ہیں، اس میں بہت مفصل بحث کی تھی، ہمارے شہر فیصل آباد کے ہوتے تھے مولانا اسحاق، حدیث کے آگے انہوں نے تو پورے لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب پہ ریکارڈ کروائے ہوئے اس ایک ٹاپک اسی عنوان میں۔ جتنا پڑھے لکھے احباب ہیں جو پڑھ لکھ جاتے ہیں انہیں سمجھ کہ امام حسن کی شرط کی پہلی صلح نے ملوکیت کا بالکل آج کے بعد تو قرآن اور سنت پر عمل کرے۔ اگر وہ عمل کرتا تھا تو اس نے کیوں کہا کہ یہ شرط کیوں لکھی گئی ہے؟ پوری بنی بنائی ملوکیت کی دیوار حسن نے زمین پہ گرا دی کہ ایک تخت اور تاج کے لالچ میں اس نے شرط تسلیم کر لی اور یہ بھی نہیں ماننا کہ یہ کتنی بڑی جنگ ہار گیا۔ کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا، دوسری شرط مولا فرمایا آج کے بعد کوئی خطیب منبر پہ علی پر تبرہ نہیں کرے۔ بسم اللہ، سنیے گا سمجھئے گا بسم اللہ۔ یہ آج کی مجلس میں اس ایک بات میں تھوڑی روشنی ڈالوں۔ بسم اللہ۔ میری قوم کے بچوں کو جن کو ہمیں آج کے اس مذہب کو ان کی نسلوں تک پہنچانا ہے، ان کے ذہنوں میں پہنچانا ہے، 70 سال مسلسل منبروں پہ سب و شتم، ایسے خزانوں کے منہ کھولے گئے تھے کہ جو زیادہ سب و شتم کر کے آتا تھا اسے اس کے حساب سے درہم و دینار دیا گیا، لالچ دیا تھا۔ آج 2021 میں ہمارے ملک پاکستان میں ایک ہی آواز کی جا رہی ہے کہ شیعہ احباب کو چاہیے کہ منبر سے تبرہ نہ پڑھیں۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ ہمارے مہربان کہتے ہیں کہ دیکھیں ماننا چاہیے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں ان کے بزرگوں کی عزت اور احترام کرنی چاہیے۔ ہم یہ معاہدہ کر لیتے اگر تم حسن کی شرط مان لیتے۔ حضور آپ نے بہت دیر کر دی، آپ کو آج احساس آیا، آج آپ کو پتا چلا
चला कि मिंबर पे तबर्रा नहीं होना चाहिए, आज आपको पता चला कि मिंबर पे किसी की किरदार खुशी नहीं होनी चाहिए। 70 साल जुमा के खतीब मिंबरों पे अपनी माओ के नापाक दूध की क़यामत, वो मौलवी मर गए, अली आज भी जिंदा है, वो मिंबर टूट गए, अली आज भी जिंदा है, वो बादशाह कब्रों के जहन्नम में चले गए, अली आज भी जिंदा है। जाओ आज पूरी दुनिया में जाके देख लो, तुम्हें तारीखों की किताबों से अलहदा निकल के देखो, जाओ पूरी दुनिया में जाके बताओ, मुझे बताओ यजीद की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ हज्जाज की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ अमर बिन आस की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ वो मुतवक्कल कहाँ गया, मुझे बताओ वो हारून रशीद कहाँ गया, मुझे बताओ वो मामून रशीद कहाँ गया, मुझे बताओ वो मौदूद बिल्ला कहाँ गया, मुझे बताओ वो इतने बड़े बड़े उम्वी हुक्मरान जिन्होंने सरों की खोपड़ियों के मीनार बनाए थे, जिन्होंने इंसानी लहू के गारे से दीवारें खड़ी की थी, आज उनकी कब्रें भी वीरान हो गई, आज उनकी कब्रों का भी किसी को नहीं पता। आज भी नजफ चले जाओ, अली की कब्र पे सजदा हो रहा है, करबला चले जाओ, हुसैन की कब्र पे सजदा हो रहा है, सिर्फ हुसैन की नहीं, सेहवन चले जाओ, कलंदर की कब्र पे कुछ लोगों को यह कानून बनाने में बड़ी जल्दी है। जितनी देर तक तो मैं पाकिस्तान में था मिंबरों से जवाब भी देता रहा और वाज़े तौर पे भी कहता रहा कि अगर आज आपको कानून बनाने की जल्दी है कि जो सहाबी की तौहीन करे उसे सजा होनी चाहिए, तो यह कानून फिर 2021 से नहीं बनेगा। अगर वाकया ही तुम इस्लाम की हमदर्द हो तो आओ फिर आज ही से इत्तेहाद का फार्मूला बना लेते हैं। आज जिसे कह देते हैं कि हर मुसलमान एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करेगा, लेकिन ये कानून 40 हिजरी से लेके जाता जिसने जहां जिस सहाबी की तौहीन की 2021 के बाद ये चंद लोग हैं ना जी उंगलियों पे आ जाते हैं जो आज मिंबर पे अकीदा पढ़ रहे हैं, जिन पे एतराज किया जाता है, जिन्हें गाली कहा जाता है, जिन्हें एजेंट कहा जाता है, जिन्हें क्या क्या तमगे दिए जाते हैं सिर्फ मोहब्बत अहले बैत बयान करने के लिए। तो जितने ये लोग हैं इनकी मैं छोटा भाई होकर मिन्नत कर लेता हूं कि आज के बाद हम मिंबर से सिर्फ इत्तेहाद पढ़ेंगे, आज के बाद हम मिंबर से सिर्फ इत्तेहाद की बात करेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान के हाशिए में लिख के देना पड़ेगा जिसने जिस दौर में चल, तू अली को इमाम नहीं मानता, सहाबी तो मानता है, जिसने अली को जहां गाली दी कुरान में पहले तू उसे काफिर लिख दे। आज हम कह देते हैं कि मिंबर से तबर्रा नहीं होना चाहिए। लेकिन गुस्ताखों को शेल्टर देकर ये कानून नहीं बनेगा। हमसे उम्मी किरदारों की इज्जत की तवक्को न रखना, हमसे नहीं होगी उमैया के लोगों की इज्जत जिन्होंने खुल के रसूल की खानदान से दुश्मनी मिंबरों से अली के खिलाफ ज़बान बोली। मौला ने फरमाया आज के बाद कोई खतीब मिंबर पे ना बोले, उठाओ ये तख्त और ताज मेरे बाप की जूती का सदका। आज के बाद मेरे किसी शिया पे हमला नहीं होगा, चुन चुन के मारे जा रहे हैं। सिर्फ एक जत्था एक कबीला मदीने में या मदाइन में तो मौला इमाम हसन के साथ नहीं बैठा था ना, पूरी दुनिया में जहां जहां मुख्तलिफ मुल्कों में अली के शिया बैठे। जाके शाम में कुछ अब इतना बता देता कि मेरी बीवी अली से प्यार करती है, तो उसके शौहर को इतना नवाज दिया जाता कि तू ही बीवी को कत्ल कर दे। बेटा कहता था कि मेरा बाप अली से प्यार करता है। इस कदर लोगों ने अली की मोहब्बत छुपा ली थी कि जनाब इमाम हसन ने मुख्तार अबू उबैदा सख्ती के जो बेटे मुख्तार के चचा के घर पनाह ली, साहब के घर जाके बना। किताबें कहती हैं कि हजरत मुख्तार के दिल में खौफ आ गया कि मेरा चचा मदाइन का गवर्नर है,
कहीं ये इमाम हसन से बेवफाई ना कर दे। रात की तरीकी में जनाब मुख्तार अपने चाचा से मिलने के लिए और मिलके कहने लगे कि मेरे ज़हन में ख्याल है, अगर हम शाम के हाकम के हाथ इमाम हसन को बेच दें तो हमें बहुत ज्यादा माल और दौलत मिलेगा। इतना कहना था, चचा ने मुख्तार का गिरेबान पकड़ा और तलवार खींच ली। उसने कहा मेरे मरे हुए भाई का बेटा ना होता, मुझे अली की इज्जत के समय तुझे अभी कत्ल कर देता। और ये कह के उसे अपने घर के दरवाजे से बाहर यूं फेंका। मुख्तार ने गर्दे पड़े हुए आंखों में आंसू और चेहरे पे खुशियां। चाचा ने कहा शर्म नहीं आती, हंस रहा है। उसने कहा हंस इसलिए रहा हूं, इम्तिहान देखना चाहता था, क्या तू भी अली से प्यार करता? मुख्तार जैसा शख्स अपने चचा पे एतमाद नहीं करता। ये दौर था कि घर के अंदर मां बच्चों के सामने अली का नाम नहीं लेती। अब बताएं कि इस दौर में अगर इमाम हसन सिर्फ मदीने को महफूज करते तो दुनिया के शीयों को महफूज किसने करना? तीसरी शर्त मेरे मौला ने लिखवाई अपने मानने वालों के तहफ्फुज की। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने तो मानने वालों के तहफ्फुज के लिए गलत वजू करा के लोगों को बचाया। तरीके वाकयात तो दोहराए नहीं जा सकते। कैसे कैसे इन्होंने शीयत का तहफ्फुज किया है, किस किस तरीके से किया है। और आप क्या समझते कि आज आप लावारिस हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे शहंशाह फरमाते मैं एक लम्हे के लिए तुमसे नजर उठा लूं, लोग तुम्हें दरिंदों की तरह खा फरमाते कि तुम्हारा इमाम है जो तुम पे साया किए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आप क्या समझ रहे हैं कि जिस दौर में आज भी शाम का हाकम जिंदा है, खजाने आज भी बांटे जा रहे हैं, बेशक फितना गरी आज भी हो रही है। मदीने से कुछ लोगों ने आके मौला अमीरुल मोमिनीन से कहा जी कि आप हमें नमाज तरावी क्यों नहीं पढ़ाते? तो उन्होंने फरमाया मैं वो नमाज वो बिदअत नहीं करना चाहता जो मैंने मोहम्मद में नहीं देखी। इन्होंने कहा ठीक है, तो हम तो पढ़ना चाहते हैं। इमाम हसन ने दुर्रे मार के इनको मस्जिद से निकाला और ये लोग शाम में जाके कहने लगे अली हमें नमाज नहीं पढ़ने देता। और शाम में मशहूर कर दिया गया कि अली नमाज नहीं पढ़ते। ये फितने का दौर है। बेशक इतनी फितना गरी हो चुकी है। कल वाली मजलिस में मैंने मुकम्मल तफसीली अंदाज में पढ़े थे पैरवी की मजलिस में कि जाली हदीसें जिसे कहा जाता है किताब में फितना वज़ा हदीस, इतनी जाली हदीसें गढ़ दी गई थी, इतनी जाली हदीसें गढ़ दी गई थी कि 2300 हदीस अकेले हाकिम शाम के लिए नबी की एक बीवी से नकल कर ली थी। अल्लाह अकबर। और उन्हें कह दिया गया कातिब वही। और मुसलमान हुए वो मक्का में। फतह मक्का के बाद आयतें आई कितनी थी? ये सारे के सारे टाइटल थे, ये सारे के सारे अलकाबात थे आले मोहम्मद के जो चुनाए गए। खालिद बिन वलीद को कहा गया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये कैसी तलवार थी जो पहले काफिरों के हाथ में थी? मालिक बिन नवेरा का कातिल बेदर्दी के साथ नबी के साथ। अली का एक नौकर अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसको हाकिम शाम ने अपने दरबार में लाके छड़ियों के साथ मारा, जख्मी कर दिया, हड्डियां सारी तोड़ दी, बूढ़ा साहब गिर गया। गिर के कहने लगा, और इनकी बेटा कोई नहीं था, इनकी सिर्फ 7 बेटियां थी। ये करीब आके कहने लगा क्या मेरा तुझे अली से मोहब्बत करके अब तेरे बाद तेरी बेटियों का क्या बनेगा? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने साथ उठा के कहा मेरी बेटियां अली के हुक्म के साथ रात को सूरा वाक़िया पढ़ के सोती हैं, तू उनका रिज़्क बंद नहीं कर सकता। इसने करीब खड़े होकर कहा, इसने कहा मैं तुझे कत्ल करना चाहता हूं लेकिन पूछना चाहता हूं तू मेरे हाथ से कैसे मरना चाहता है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने सर उठा के कहा जैसे 12वें के दौर में तू मेरे हाथ से मरना चाहता है। इमाम हसन मुस्तफा को जब दरबार में बुलाया गया तो इसने दरबार में बुला के इसने दरबार में रश इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद कहा कि आज मेरी खिलाफत मुकम्मल हो गई, शराइत आ गई,
میں خلیفہ بن گیا, مجھے خلیفۃ المسلمین مان لیا اور حسن کو خلافت سے ہٹا دیا. درود سارے حضرات مل کے بابا بارے دیگر بلند تر صلوات.